Hello everyone. So today our topic of discussion is monetary policy. Here we are going to see the monetary policies by the RBI like expansionary policies or the contractionary policies, and also that how the change in the repo rate by the RBI is transmitted to the lending rate of the commercial banks. First of all, we will see that what is expansionary policy and the contractionary policy. Expansionary policy and contraction. If it is expansionary in nature, it means that more money is injected into the economy. But if it is contractionary, then it means that reduction in the level of money supply in the economy. Reduction in money supply. Now we will start with the example to look that how the change in the repo rate is to be transferred to the lending rate. So let's say there is a person P and he has deposited some amount in the bank. This is SBI, let's say. So the person P1 has deposited rupees 100 in this bank. And as per the agreement with the bank, he get a receipt and it is rupees 100 in SBI at the rate of 10%. So he'll for 1 year. He'll get 110 after 1 year. An agreement is being done. So this is the deposit case, how the money is deposited into the bank. Now SBI bank has to do some lending so that the bank can uh, give the amount back to the person P1 at the end of 1 year. So now for lending purpose, this bank cannot lend the complete amount as per the SBI criteria. There is some reserve deposit ratios. So some amount is to be reserved. So let's say 20% it is. So rupees 20 is reserved. Now this bank has rupees 80 to lend. It will lend these 80 rupees and need to have 10 rupees as profit. Minimum 10 rupees at profit. Because 10 rupees need to be given back to this person at the end of 1 year. So these 10 rupees are as a part of the amount which is to be returned to the person P1. But there are some cost of performance because as there are many employees in the banks, so the cost involved in the banking activities, it plays a role. It will decide that what should be the lending rate of the banks. And I mean, it is the profit of the bank, we can call it, what the profit they are going to get. So this is the way by which this bank will decide that what will be the cost of funds. The rate by which banks lend, it is known as cost of funds. So let's say they planned that they will lend at 20%. So keeping in view that all the rates, that their profit, their charges, their employee salary, and because some amount has been reserved, that is why they'll consider all the points and then will decide that what is the lending rate. This is how normally the lending rate is decided by the banks. So now moving ahead, and we will discuss that let's say RBI is here and there is a repo rate of 4% and reserve repo rate 4.5%, and RBI changed the repo rate from 4 to 4.5%, and also reserve repo is changed to 5%. But now our aim is that how the transmission would take place, how the transmission would take place from the repo rate to the lending rate. This has been changed, one step done. Now this change would come to the money market. Money market is those markets which are for very short duration. So let us say there is a bank, Axis Bank,
and one is SBI. And SBI lend some money from Axis Bank, that is, let's say rupees 100 at the rate of 5% for 10 days. Let's say for 10 days. And this agreement is given to the Axis Bank that we have done an agreement with SBI and SBI will get 100 rupees. And this deposit script, the receipt will be given to the Axis Bank. सो अब हम इस सिनेरियो को देखते हैं. नॉर्मली हर बैंक के पास एक ऑप्शन होता है. एसबीआई के पास भी इस टाइम पे ऑप्शन था कि आरबीआई से जाके वो अमाउंट ले सकते हैं. लेट्स से कि रेपो रेट इज 4%, तो आप आरबीआई के पास जाओ और रेपो रेट पे कुछ अमाउंट ले सकते हो. या फिर अगर आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से चाहिए, ओवरनाइट मनी लेना है, तो भी आप आरबीआई से ले सकते हो प्लस 0.5 रेट पर. नॉर्मली प्रेफर भी करते हैं बैंक्स ऐसे लेंडिंग करना, लेकिन कंडीशन ये होती है कि टोटल अमाउंट नहीं मिल पाता है. ओवरनाइट अगर आप लेंडिंग कर रहे होते हो तो आपको बोला जाता है कि 0.25% ऑफ टोटल आपकी न्यू जो भी डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज हैं एनडीटीएल, तो टोटल में से आपको इतने ही परसेंट मिल सकता है. बाकी लेंडिंग आपको फिर किसी बैंक से ही हेल्प लेनी पड़ेगी. इसी वजह से नॉर्मली कॉल मनी मार्केट भी यूज करते हैं बैंक्स. कॉल मनी मतलब ऐसे ही किसी पार्टनर बैंक से आप मनी लेंड कर लो और फिर उसको उतने डेज के बाद रिटर्न कर दो. सो लेट्स से हमने देखा कि रेपो रेट के अंदर चेंज हुआ, रेपो रेट इंक्रीज हो गया, तो रेपो रेट का जो इम्पैक्ट होगा वो इधर भी आएगा कॉल मनी मार्केट में, क्योंकि सारे बैंक्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि हमने रेपो रेट को चेंज कर दिया. सारी मनी मार्केट में सारे बैंक्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि अभी जो रेपो रेट है वो चेंज हो गया है. तो जैसे ही रेपो रेट चेंज होगा वैसे ही जो कॉल मनी मार्केट में बैंक्स आपस में लैंडिंग कर रहे थे उसका रेट भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज हर बैंक को इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमने रेट इंक्रीज कर दिया है आरबीआई ने या फिर रेट डिक्रीज कर दिया. तो क्योंकि ये वाला चेंज इधर यहाँ पर बैंक्स में आ जाएगा, तो इसी वजह से डिपॉजिट रेट में भी चेंज आ जाएगा. तो जैसे एक्सिस ने अपना कुछ पैसे एसबीआई के अंदर एक तरह से डिपॉजिट ही किया है ना, डिपॉजिट रिसिप्ट मिली है, तो जो ये डिपॉजिट किया है इसका रेट चेंज हो जाएगा. तो अगर उसने एसबीआई को डिपॉजिट दिया है, उसका रेट चेंज किया है, तो अभी जो कोई पर्सन इस बैंक के अंदर आके डिपॉजिट करेगा, कोई पर्सन P2 आके डिपॉजिट करेगा, उसके लिए भी इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा. पहले 4.5 होगा लेट्स से इधर, अभी ये 5 हो गया बिकॉज रेपो रेट चेंज हुआ. तो ये किसी भी पर्सन के डिपॉजिट के लिए चेंज हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक्स आपस में जो मनी देते हैं उसमें चेंज आएगा, देन वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा किसी और भी डिपोजिशन में. कोई भी पर्सन अगर डिपॉजिट कर रहा होगा उसके लिए भी चेंज हो जाएगा. तो जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा डिपॉजिट रेट में, डिपॉजिट में रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फिर लैंडिंग रेट में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा. सो अगर डिपॉजिट रेट 4.5 से 5 हो जाएगा, तो सिमिलरली लैंडिंग रेट को भी इंक्रीज करना ही पड़ेगा. लेट्स से वो 5 था तो वो 5 to 6 हो जाएगा, तो वो इम्पैक्ट आएगा. तो वो स्टार्ट हुआ रेपो रेट से, देन वो फिर हमारी मनी मार्केट में शो होगा सबसे पहले, देन डिपॉजिट रेट पे आएगा और देन वो लैंडिंग रेट पर भी शो करेगा. इस तरह से टोटल वो ट्रांसमिशन हो जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड. दिस इज हाउ दिस साइकिल गोज and this is the base rate, the base lending rate. Next rate we have is MCLR, वेरी इंपॉर्टेंट वन. MCLR की नीड किस लिए थी? बिकॉज हमने देखा कि जो बिगिनिंग में क्या होता था कि कॉमर्शियल बैंक्स जो रेट रखते थे, लैंडिंग रेट होता था, वो सबके लिए सेम नहीं होता था. देवर सम differences found in the lending rate. That is why marginal cost of lending rate को आरबीआई ने प्रेजेंट किया कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है रेपो रेट से लेकर मनी मार्केट तक, डिपॉजिट रेट तक एंड फाइनली टू द लैंडिंग रेट, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए. यूजुअली होता ये था कि जो रेपो रेट चेंज हो जाया करता था, उसके चेंज होने के बाद भी एक्चुअल रिफ्लेक्ट नहीं हुआ करता था, मतलब लैंडिंग रेट बैंक्स अपना चेंज नहीं किया करते थे. सो लेट्स से हम कोई नॉर्मल केस लेते हैं कि आरबीआई की तरफ से रेपो रेट देखते हैं कि 2019, व्हाट इज द मंथ नाउ, मार्च, सो मार्च 2020, 2021, मार्च 2022. सो मीन 4 ईयर्स में कुछ डिपॉजिट का ले लेते हैं. लेट्स से कि किसी बैंक के अंदर ₹100 डिपॉजिट हुए
मार्च 2019 में, और उस टाइम पे जो रेपो रेट था दैट वाज लेट्स से 4, फिर यहाँ पे 4.5, 5 और इधर 5.5, लेट अस से रेपो रेट अभी इतना एग्जैक्ट नहीं है, हम जस्ट सपोज कर रहे हैं। तो फिर रेट चेंज होंगे, यहाँ पे लेट्स से कि 7% के रेट पर डिपॉजिट हो रहा है, ये डिपॉजिट रेट है। देन फिर मार्च 2020 में जो डिपॉजिट होगा उसके लिए वी हैव लेट्स से कि 8% पे ये अमाउंट डिपॉजिट हुआ, देन 9% पे हो गया मार्च 2021 में। तो अभी एवरेज नॉर्मली जो हम लेंडिंग रेट डिसाइड किया करते थे अब तक, वो होता था कि आप एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स पे डिसाइड करोगे, मतलब जो आपका लैंडिंग रेट होगा आप इससे डिसाइड नहीं करोगे कि हमारे पास अभी 100 रुपीज आए हैं तो अभी इस 100 रुपीज के लिए लैंडिंग रेट डिसाइड करते हैं, ये इतने आए थे इस पे डिसाइड करते हैं। लैंडिंग रेट जब भी डिसाइड होगा तो आप टोटल अपना एवरेज जो भी अमाउंट है उसका एवरेज करके लैंडिंग रेट डिसाइड करना होता है। लैंडिंग रेट किसी पर्टिकुलर डिपॉजिट पे नहीं डिसाइड किए जा सकते थे, तो इसीलिए एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड से डिसाइड किए जाते थे। तो इसमें कुछ वेरिएशन मिला, वेरिएशन किस लिए कि अभी तो हमने सिमिलर देख लिया कि 100 आए थे तो 7 के रेट पे 100 सिमिलर, लेट्स से कि 7 के रेट पे 2000 आ चुके होते तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो अगर हम एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड पे रेट निकाल रहे होंगे, ये 7% पे आया था, जबकि जब वापस में इसका क्यूमुलेटिव करेंगे इट इज़ 2200, और अगर हम उसका एवरेज निकालेंगे 7, 8, 9 का, 7 का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट अगर हम एवरेज निकालना चाह रहे हैं तो किसी का कम किसी का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये MCLR में प्रपोज किया गया कि टोटल हमेशा एवरेज ही करना है, किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे नहीं डिसाइड कर लेना है कि लैंडिंग रेट ये हो। यहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इधर का लैंडिंग रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाकी केसेस का लैंडिंग रेट बहुत ज़्यादा कम। तो ऐसा नहीं करना है कि किसी केस में लैंडिंग रेट बहुत ज़्यादा हो जाए एंड किसी केस में कम हो जाए। इसीलिए एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड का उस टाइम पे प्रपोज किया गया कि जब भी आपको रेट डिसाइड करना है वो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड के बेसिस पे करना है। एंड फिर आपका इसकी वजह से थोड़ी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई थी। एंड नेक्स्ट पे 2019 में एक नया प्रपोज किया गया जिसमें एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट है। एक्सटर्नल बेंचमार्क में है कि कोई एक्सटर्नल मार्क होगा जिसकी हेल्प से आप अपना रेट चेक करेंगे, जैसे था कि रेपो रेट की हेल्प से आप लैंडिंग रेट डिसाइड कर सकते हैं। मतलब जो बैंक है, लेट्स से ये SBI बैंक है और इनको डिसाइड करना है कि इनके बैंक का लैंडिंग रेट क्या होगा, तो डिसाइड करने का क्राइटेरिया ये नहीं है कि हमारे एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड कितने हैं, मतलब एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, आपके पास 100 रुपीज़ हो या फिर आपके पास 2000 रुपीज़ हो, सबके लिए वो सेम ही क्राइटेरिया रहेगा। आपका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, या तो आप रेपो रेट प्लस सम एक्स अमाउंट आपको ऐड करना है बस, और ये एक्स फिक्स रहा करेगा 3 इयर्स के लिए। मतलब आपको प्लस एक्स कुछ करना है और वो प्री डिसाइडेड होगा, आप बोल दोगे कि हम 3 इयर्स के लिए ये एक्स ही ऐड करेंगे। रेपो रेट अगर 4 होगा तो हम 4 प्लस, लेट्स से एक्स की वैल्यू यहाँ 3 है तो हम 4+3 कर देंगे, रेपो रेट 5 हो गया तो हम 5+3 कर देंगे। तो ये फिक्स कर दिया गया था। तो आप इसमें रेपो रेट को यूज कर सकते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का जो भी इंटरेस्ट रेट है, फॉर लेट्स से कोई लॉन्ग टर्म वाली है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑप्ट करना है तो आप कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो शॉर्ट टर्म वाली सिक्योरिटीज हैं उनका जो भी इंटरेस्ट रेट है उस इंटरेस्ट रेट को यूज कर सकते हो। एंड सेम उसमें भी आपको कुछ एक्स ऐड करने का चांस दिया जाएगा, बट ये एक्स आप 3 इयर्स तक नहीं चेंज कर सकते हैं। दिस एक्स इज नॉन एज स्प्रेड एंड दिस कैन नॉट बी चेंज with within 3 years. After 3 years you can change this. This is the external benchmark lending rate, and it is presented in October 2019. With the help of this lending rate, transparency is more, because now the lending rate of banks is not decided as per their sheet. Now it is decided by the external rates. May it be repo rate, may it be some government security rate. So it helped to solve the problem of transparency in the money market. I hope you understand the topic well. Thank you for watching.